الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة حيوان لو كانوا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کی یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اعمال کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خود رب تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انسان کے لیے دنیا دارالامتحان ہے اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہایت مختصر ہے۔ دنیا کی زندگی چونکہ مختصر ہے، آخرت کی زندگی لمبی اور دائمی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کے متعلق فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ جو آخرت کی زندگی ہے یہ اصل جینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو مختصر سا وقت عطا فرمایا ہے اور یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ ان اعمال میں خرچ کرے کہ جن اعمال کے کرنے پہ رب تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، وگرنہ وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے اور گزرتا ہی جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی کا اختتام ہوگا اور اس وقت پچھتانا پڑے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا ہوتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے زندگی والا آدمی صاحب زندگی انسان یہ صحیح طرح خرچ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح طرح خرچ کرے گا وقت نے پھر بھی گزرنا ہے، اگر صحیح طرح خرچ نہ کرے گا وقت نے پھر بھی گزرنا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں برف ہے، برف کا کام ہے پگھلنا۔ اگر برف کو استعمال کر لیں گے تو برف پھر بھی پگھلے گی، اگر استعمال نہ کریں گے پھر بھی پگھلے گی۔
ایک آدمی ہے بازار سے برف خرید کر لایا اور مقصد یہ تھا کہ اس سے پانی کو ٹھنڈا کروں، ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیوں، لیکن ابھی لے کر آیا تو پانی میں ڈالا نہیں، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو برف یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے ابھی پانی میں نہیں ڈالا گیا تو میں نہ پگھلوں، بلکہ برف اپنی روٹین کے ساتھ پگھلتی رہے گی۔ یہ برف خرید کے لانے والا آدمی جس مقصد کے لیے خرید کے لایا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لے گا، پھر بھی پگھل جائے گی۔ نہیں استعمال کرے گا تو وہیں پڑی پڑی پگھل جائے گی۔ ایک وقت آئے گا دیکھیں گے کہ برف کی جگہ پر پانی ہوگا، اور پھر دیکھیں گے ایک وقت کے بعد پانی بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ جگہ خشک ہوگی۔ تو جس طرح برف اس کا کام پگھلنا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ کو خرید کے لانے والا اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح وقت اس کا کام ہے گزرنا، یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی انسان صحیح طرح مجھے استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وقت اس طرح گزرے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے تو اس نے تب بھی گزرنا ہے۔ اگر وقت گزرے نماز اور روزے اور اچھے اعمال میں، اس نے تب بھی گزرنا ہے۔ لہذا یہ انسان کی عقل مندی ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کرے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے متعلق فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ کہ بھائی جس طرح انسان کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے تو کھیتی کاشت کرنے کے بعد انسان کو کھیتی کی بقدر، اس میں محنت کی بقدر بعد میں فصل حاصل ہو جاتی ہے، اناج حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا، اس کے اندر جو بیئیں گے وہی کاشت کریں گے۔ کاشتکار دنیا میں جو بوتا ہے تو وہی کاشت کرتا ہے، انسان جو عمل کرے گا اسی کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کے بدلے کو دیکھ لے گا، اور ذرہ بھر برائی کرے گا تو اس کے بدلے کو دیکھ لے گا۔ تو گویا انسان کی یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، آج جو یہاں بوئے گا آخرت میں وہ پالے گا۔ جس طرح کاشتکار جو بھی بوتا ہے تو اسی کو کاٹتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بیجے کاشت کرے تو چاول اور حاصل ہو اس کو گندم۔ بھی اگر اس نے چاول کاشت کیے ہیں تو چاول ہی حاصل ہوں گے، گندم کاشت کی ہے تو گندم ہی حاصل ہوگی، جو کاشت کیا وہی ملے گا۔ اسی طرح انسان اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو یہ دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں اصل زندگی فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے بھی دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی کو اخر زندگی فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک مسافر خانے کی سی ہے۔ جس طرح ایک مسافر دنیا میں سفر کرتا ہے تو جب سفر سے تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کرنے کے لیے جائے قیام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی جگہ ٹھہرتا ہے اور وہاں پہ جو ضروریات ہیں پوری کرتا ہے۔ اگر تھکاوٹ ہو گئی ہو تو نیند پوری کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو اتارتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھاتا ہے، اور ضروریات ہو تو پوری کرتا ہے۔ تو لیکن مسافر جس جگہ پہ وہ
ठहरा हुआ है वो ये समझता है कि मेरी मंजिल ये नहीं है बल्कि मैंने आगे सफ़र करके जाना है, ये तो मेरी आर्जी क़यामगाह है। इसी तरह मोमिन का ये ज़हन होना चाहिए कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है। यहाँ तो हम एक मुसाफिर की तरह, जिस तरह वो मुसाफिर खाने में ठहरता है या किसी जगह पे आर्जी पड़ाव करता है, तो इसी तरह हमारी यहाँ पर एक आर्जी क़यामगाह है। तो ये दुनिया आर्जी जगह है, रहने की असल जगह जो है वो जन्नत है। मोमिन का ठिकाना आखिरकार जन्नत है। लेकिन वो मोमिन जो दुनिया में ईमान कबूल करने के बाद आमाल अच्छे न करेगा या उसमें कोताही करेगा तो उसको आखिरकार कानून के मुताबिक तो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में निहायत मुख्तसर है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ लोगों का ये गुमान भी ज़िक्र किया है कि वो ये तसव्वुर करेंगे लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबला में, आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबला में दुनिया की ज़िंदगी को समझेंगे गोया कि वो दुनिया में एक शाम ठहरे या एक सुबह ठहरे। एक शाम कितना का वक़्त होता है, एक सुबह का वक़्त आखिर कितना का होता है, वो निहायत मुख्तसर होता है। तो आखिरत की लंबी ज़िंदगी के मुकाबला में दुनिया की ज़िंदगी एक शाम के बराबर होगी या एक सुबह के बराबर होगी। ज़ाहिर बात है शाम और सुबह निहायत ही एक मुख्तसर वक़्त है। तो इसी तरह आखिरत के मुकाबला में दुनिया की ज़िंदगी एक निहायत मुख्तसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ फरमाया है कि ये खेल और तमाशा है। वमा हादिहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। दुनिया की ज़िंदगी तो खेल और तमाशा है। तो खेल और तमाशा कैसे है कि देखो जिस तरह के खेल है, खेल के बारे में बसा औकात ये होता है कि खेल खेलने वाले बसा औकात तो सारा सारा दिन खेलते रहते हैं और बसा औकात बहुत थोड़ी देर खेल के वापस आ जाते हैं। क्योंकि खेल का पता नहीं होता कि ये कब ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह ज़िंदगी का कोई पता नहीं ये कब ख़त्म हो जाए। बसा औकात बच्चे घर से खिद्दो खूंडी उठाते हैं, क्रिकेट के बैट बल्ले उठाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो बहुत थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। क्या हुआ जी, खेलने गए थे लेकिन जो है वहाँ लड़ाई हो गई इसलिए जल्दी वापस आ गए। बस औकात खेलने के लिए जाते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और बस औकात वालिदैन के जूते मार के वापस लाना पड़ता है। तो खेल के बारे में पता नहीं होता कितना लंबा हो, कितनी देर तक हो, कितना वक़्त है इसका। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है कि कितना वक़्त है इसका। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी को तमाशा फरमाया गया। तो ये तमाशा क्या है, तमाशे के बारे में भी पता नहीं होता कि कब ख़त्म हो और अपना कब शुरू हो। अब मदारी बस औकात तमाशा करने वाले आते हैं तो बसा औकात तमाशा करते हैं, वो देख रहे होते हैं कि भाई हमारे इर्द गिर्द जो लोग जमा हैं और वो वाकई हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हमें अपने इन करतबों पर जो है इनाम भी दे रहे हैं, तो वो लालच में आकर अपने तमाशे को लंबा कर देते हैं। लेकिन जो है अगर देखा जाए कि भाई तमाशा जो है करने वाले की हौसला अफजाई नहीं हो रही बल्कि उसको इनामों किराम की बजाय जो है अपना लानत फटकार का सामना हो रहा है कि लोग कहते हैं ये क्या है, ये इसने क्या कमाल दिखाया, ये क्या कमाल की चीज़ है। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो फिर बस औकात जो है तमाशा करने वाला अपना तमाशा ज़्यादा देर तक जारी नहीं रखता। तो जिस तरह तमाशे के बारे में पता नहीं है कि ये कितना हो, लंबा है कि मुख्तसर है, कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं, दुनिया की ज़िंदगी के बारे में कोई पता नहीं कि ये कब ख़त्म हो जाए। आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में बहुत लंबी है। इंसान इस दुनिया में जीता है तो उम्मन अपने मुतल्लिक़ ये ज़हन होता है कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है,
मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, लंबी और लंबी उम्मीदों के साथ इंसान जीता है, और हालांकि उसके सामने उसके हम उम्र लोग फौत हो रहे होते हैं, और बसा औकात उसके सामने उसकी ज़िंदगी में उससे छोटी उम्र के लोग फौत हो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने मुतल्लिक ये ख्याल करता है कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, मैंने नहीं भी मरना। अपने हाथ से बसा औकात अपने छोटे भाई को दफन कर रहा होता है, अपने हाथ से बसा औकात अपने बेटे को दफन कर रहा होता है, अपने हाथ से बसा औकात अपने पोते को दफन कर रहा होता है। तो उसका ये गुमान होता है इसकी ज़िंदगी तो थोड़ी थी, ये तो मर गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी बहुत लंबी है। जिस आदमी का ये गुमान है कि मैंने अभी मरना नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो वो भी अकल है। वो समझ नहीं सका कि दर हकीकत दूसरों के मरने से यहाँ क्या मकसूद है, और दूसरों को दफनाने से क्या मकसूद है, दूसरों की नमाज जनाजा पढ़ने से क्या मकसूद है, दूसरों को गुस्ल देने से क्या मकसूद है। इंसान जो जिंदा है उसके ज़िम्मा वाजिब है कि मरने वाले को गुस्ल भी दे, उसके ज़िम्मा वाजिब है मरने वाले को कफन पहनाए, उसके ज़िम्मा वाजिब है मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़े, उसके ज़िम्मा वाजिब है मरने वाले को खुद दफन करके आए। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह मैयत के हुकूक में से हैं, इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए इबरत का मकाम भी है। जब एक इंसान अपने किसी अजीज, अपने किसी रिश्तेदार को दुनिया में आते देखता है और फिर दुनिया से जाते भी देखता है, तो उसका ऐलान होता है फलां आदमी, फलां का बेटा, फलां का भाई फौत हो गया, उसका इतने बजे जनाजा है। ये ऐलान उसी का नहीं है, दर हकीकत ये हमें तवज्जो करवाने के लिए है कि भाई देखो ये ऐलान है मौत का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की तरफ इशारा है। आज ये फौत हो गया, इसके बाद तुमने भी मरना है, ये मरा है तुमने भी मरना है, ये गया है तुमने भी जाना है। ये जो ऐलान होता है ये दर हकीकत जिंदों के लिए मौत का पैगाम है कि फलां मर गया, तुम्हारी बारी आने वाली। तो जिंदा को कहा गया तुम्हारे अजीज और अकारब में से कोई फौत हो जाए उसको अपने हाथों से गुस्ल देना है। जब उसको अपने हाथों से गुस्ल दोगे तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। भाई देखो आज ये यहाँ पड़ा है और मैं इसको गुस्ल दे रहा हूँ, कल को मैं भी इसी जगह पड़ा हूँगा, मुझे भी कोई गुस्ल देगा। अगर इसकी जगह पर मैं होता, क्या मैंने मरने से पहले मरने की तैयारी कर ली थी? इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसद। रब ताला की हिकमत छिपी हुई है इन कामों के अंदर। जब इंसान दूसरे का कफन खरीदता है, दूसरे को कफन पहनाता है, तो इस बात की तरफ इशारा, ध्यान है, ऐलान है कि आज इसका कफन खरीदा जा रहा है, आज इसको कफन पहनाया जा रहा है। एक वक्त आएगा तुझे भी कफन पहनाया जाएगा। जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और घर से मैयत का जनाजा इंसान उठाता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है, इसमें ये हिकमत है, इंसान जनाजा किसी का उठाए उसको जनाजा अपना याद आए कि मैंने भी इस हालत के अंदर अपने घर से निकलना है, जब मेरा भी जनाजा पढ़ा जाएगा। और फिर दफन करने के लिए जाता है तो फिर इस बात की तरफ ध्यान है कि देखो आज फलां मरा है, इसको मैं अपने हाथों से दफन कर रहा हूँ, कल को इस जगह मुझे भी दफन किया जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मेरी आखिरत के लिए कितनी तैयारी थी। तो उस पर अल्लाह पाक की तरफ से कल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इस मरने वाले की जगह नहीं हूँ, आपने मुझे मोहलत दे दी है, अभी मैं दुनिया में इस कुछ और वक्त रह रहा हूँ। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह हर किस्म की नाफरमानी से मैं जितनी ज़िंदगी रह गई है या अल्लाह तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारूंगा। तो ये दर हकीकत तौबा की मुनादी है। जो किसी के फौतगी का ऐलान है, किसी के जनाजे का ऐलान है, किसी का हम जनाजा पढ़ते, किसी को हम दफन करते, ये दर हकीकत ऐलान है इस चीज़ का कि वह जो दुनिया में आया उसने इस दुनिया से जाना ज़रूर है। और हर आदमी का रब ताला की तरफ से एक वक़्त मुकर्रर है, लेकिन किसी इंसान को बताया नहीं गया, किसी इंसान को बताया नहीं गया कि तेरी जिंदगी है कितनी।
हर इंसान अपने हर घंटे को अपना आखिरी घंटा समझे, हर दिन को अपना आखिरी दिन समझे। अगर नमाज की तौफीक है, हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझे कि पता नहीं इसके बाद अगली नमाज पढ़ना नसीब होगी कि नहीं होगी। हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझे, हर साल को आखिरी साल समझे। हाँ जी, ये एक मोमिन की सोच होनी चाहिए कि मरने से पहले मरने की तैयारी। क्या कहते हैं, मूतु कब्ल अन तमूतु, मरो मरने से पहले। क्या मतलब, मरो यानी मौत की तैयारी करो, मौत के आने से पहले। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मरना भी आसान हो जाएगा। हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो उसको उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो आदमी नेक है तो फिर उसको जन्नत के नज़ारे कराए जाते हैं जहाँ उसने आखिरकार जाना है। और अगर आदमी बद है तो दोज़ख की मुख्य मुशाहदात होते हैं, यानी दोज़ख का मुशाहदा करवाया जाता है। तो नेक आदमी होता है तो नेक आदमी की कोशिश होती है कि मुझे जल्दी ही जाला इस ठिकाने की तरफ ले जाए। और मौत के वक़्त उसको रुखसत होते वक़्त, रूह के निकलते वक़्त एक खुशी होती है चेहरे पर। आप कभी गौर फरमाएं, नेक आदमी दुनिया से जाता है तो बस औकात उसके चेहरे पे एक ख़ास किस्म की खुशी के आसार होते हैं। वो उसी वजह से होते हैं कि मरने से पहले उसको उसका ठिकाना दिखाया जाता है और जन्नत दिखाई जाती है तो उसको देख के खुश हो रहा होता है। उसी वक्त जो है उसकी जान निकल जाती है। और बुरा आदमी जो है, जब उसको उसका ठिकाना दिखाया जाता है तो उस वक्त वो उसकी जो कैफियत होती है अजीबोगरीब होती है। बस औकात आपने देखा होगा कि मरने वाले बाद हजरात मरते हैं तो उनके मुंह टेढ़े, उसके चेहरे टेढ़े, आंखें अजीबोगरीब और कैफियत अजीब होती है। तो वो दोज़ख के मुशाहदे की वजह से ऐसा होता है। जब आदमी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आदमी की रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है और रूह निकाल के जाता है, आंखें जो है ना फटी की फटी रह जाती हैं। आंखें जो बंद नहीं होती है ना बस औकात, तो खुली खुली होती हैं। फौरन बात बंद कर दो तो ठीक है, वगरना बंद नहीं होती फिर। तो ये आंखें जो खुली होती हैं, ये आंखें रूह का ताक़ुब करती हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, हज़रत उम्मे सलमा के पहले जो शौहर थे तो उनकी वफ़ात का वक़्त वफ़ात हो गई। हुज़ूर नबी पाक सल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए, देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थी। तो आपने फरमाया कि आंखें रूह का ताक़ुब करती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता की है, लेकिन कोई पता नहीं किसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान की ज़िंदगी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, उनकी मौत का वक़्त आ जाता है, तो उस वक़्त ला यस्तअखिरून साअ, एक घड़ी भी, एक लम्हा भी, एक घंटा, एक मिनट भी उसकी मौत मुअख्खर नहीं होती। वला यस्तक़दिमून, और जो वक़्त तय है, जो वक़्त तय है तो उससे पहले भी नहीं आते। यानी अपने तयशुदा वक़्त से ना ये लोग आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। जो वक़्त तय है उसी में मौत आएगी। जो कुफार हैं उस औक़ात उनको रब तआला के इन ऐलानात के बारे में, मुसलमानों के इन नज़रियात के बारे में शुक्क शुबहात होते हैं कि नहीं जी, ये कैसे हो सकता है कि मौत एक घड़ी, चंद लम्हात, चंद घंटे आगे पीछे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बस औकात अपनी अकल से इसका इनकार करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के फ़िलासफ़रों में एक फ़िलासफ़र हुआ है अफलातून के नाम से। अफलातून ये बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। तो इसने एक दिन सोचा कि ये जो मोमिन लोग कहते हैं, अल्लाह को मानने वाले, कि इंसान की मौत का जो वक़्त मुकर्रर है तो उसी पे आती है, तो एक लम्हा ना आगे होती है ना पीछे। तो ये बात अजीब है। अगर मुझे पता चले जाए कि मेरी मौत कब है तो मैं अपनी मौत के वक़्त को कुछ देर के लिए टाल के दिखाऊं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक़्त के पैगंबर को बता दिया कि अफलातून को कह दो तुम्हारी मौत का फलां वक़्त मुकर्रर है, फलां दिन फलां वक्त। तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी मौत को कुछ वक़्त के लिए मुअख्खर कर दूंगा, कुछ देर के लिए टाल दूंगा? तो लो हमने तुम्हारा वक़्त बता दिया, अपने वक़्त को मुअख्खर करके दिखाओ। चुनांचे वक़्त के पैगंबर ने अफलातून को बता दिया कि तुम्हारी मौत का फलां दिन मुकर्रर है, फलां वक्त मुकर्रर है, लिहाजा अगर उसको टाल सकते हो तो टाल लो। जब उसको पता चला तो उसने एक हीला सोचा कि दुनिया में कोई अजीब काम कर जाता हूँ तो लोग मुझे याद करेंगे और कहेंगे अफलातून आया था अपनी ज़हानत की बिना पे अजीब काम कर गया। तो भी जो कहा गया वक़्त मुकर्रर है मौत का, तो मैं किसी हीले बहाने से अपनी मौत के वक़्त को कुछ देर के लिए मुअख्खर कर देता हूँ किसी हीले से। उसने हीला यह सोचा कि उसको बता दिया गया फलां दिन और फलां वक़्त में तुम्हारी मौत आएगी, तो उसने तदबीर ये इख्तियार की अपनी मौत को मुअख्खर करने की कि अपने जैसे मुजस्समे तैयार करवाए, अपने जैसे अपनी शक्ल के आदमी तैयार करवा लिए और एक कमरे के अंदर मेज रखा, उसके इर्द गिर्द कुर्सियां रखी और कुर्सियों के ऊपर जो है अपने हम शक्ल बंदे बिठा दिए। उन्हीं के अंदर जो है ना खुद भी मिल के बैठ गया, यानी हम शक्ल कई बंदे हो गए। तो उसके ज़हन में ये था कि जब इज़राइल आएंगे तो असली अफलातून को ढूंढते हुए उनको कुछ देर लग जाएगी, तो लिहाजा देखेगा इधर उधर इज़राइल भी है, इसमें असली अफलातून कौन सा है, तो कई जो बैठे हुए हम शक्ल, तो ढूंढते हुए देर लग जाएगी, तो मेरी मौत का जो वक़्त हम कर रहा हूँ उसमें कुछ ताख़ीर हो जाएगी और लोग फिर मेरी मिसालें दिया करेंगे, वाह भाई वाह अफलातून इतना अक्लमंद था कि उसने तदबीर से अपनी मौत का कुछ वक़्त मुअख्खर कर दिया होशियारी और चालाकी से। इसलिए जब मौत का वक़्त आया तो उसने अपने मुजस्समे तैयार कराए और मेज़ के इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगवा कर, हाँ जी, मुजस्समे उस पर रख दिए और खुद भी उनके दरमियान बैठ गया, इस गुमान के साथ कि इज़राइल आएंगे और उनको मुझे ढूंढते हुए देर लग जाएगी, तो वक़्त ज़्यादा गुजर जाएगा, मौत मेरी मुअख्खर हो जाएगी तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। हज़रत इज़राइल आ गए, वक़्त पे आ गए। वो तो ऐसे वक़्त के पाबंद हैं, दुनिया में कोई ऐसा वक़्त का पाबंद है ही नहीं। आ गए, देखा तो कई अफराद बैठे हुए हैं, हाँ जी, अफलातून दरमियान में बैठा हुआ और इर्द गिर्द वो मुजस्समे जो कि उसने अपने तैयार करवाए थे वो भी कुर्सियों पर मौजूद हैं। अब इज़राइल आए और आकर कहा ए अफलातून, उसको आवाज़ दी तो ये फौरन बोला हाँ जी, फौरन बोला हाँ जी। तो हज़रत इज़राइल ने कहा अरे बेवकूफ़, देख तुझ में और इनमें यही फ़र्क है, तू बोलते और ये बोलते नहीं है, यही तेरी मौत का वक़्त मुकर्रर है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा, फौरन उसकी जान निकाल ली। तो उसने कितना वक़्त लगाया अपनी मौत के कुछ लम्हात को मौखर करने के लिए कि दुनिया में जो कहा जाता है, मोमिन लोग कहते हैं मौत का वक़्त मुकर्रर आगे पीछे नहीं हो सकता, तो अपने जैसे मुजस्समे तैयार करवा के कमरे में सबको कुर्सियों के ऊपर बिठा दिया, खुद दरमियान में बैठ के। भी इज़राइल को ढूंढते हुए देर लग रही है असल अफलातून कौन सा है। लेकिन इज़राइल ने आते ही जब अपने फन का मुजाहरा किया, फौरन आवाज़ लगाई तो ये बेवकूफ़ फौरन बोल रहा है अफलातून, कहता हाँ जी। तो जो मुजस्समे थे वो कहाँ बोलेंगे। तो मौत का जो वक़्त मुकर्रर है वो अपने वक़्त पे आके रहती है, ना एक घड़ी, एक लम्हा, 1 मिनट आगे होती है और ना ही पीछे होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों के पास तशरीफ़ फरमा थे, मिशकात शरीफ में वाक़या है। तो एक आदमी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा हुआ था, उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। हज़रत इज़राइल आए तो उस आदमी को घूरने लगे, हदीस शरीफ में वाक़या, उस आदमी को घूरने लगे। तो उसने कहा हज़रत इज़राइल आ गए और मुझे घूर रहे हैं, तो आप हवा को हुक्म दें
مجھے اٹھا کر ہندوستان میں پھینک دے۔ بیٹھے ہوئے تھے شام میں، ملک شام میں، اور کہا کہ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے ہندوستان میں ڈال دے، اسرائیل میرے پیچھے، میں ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس طرح اور بہت ساری خصوصیات، ان کی خصوصیت تھی ہوا ان کے تابع تھی، ہوا میں ان کا تخت اڑتا تھا، تو ہوا تابع تھی۔ تو آپ نے کہا چلو یہ کہتا ہے تو ہوا کو حکم دیا بھی اس کو ہندوستان میں ڈالنا۔ چنانچہ جب وہ آدمی غائب ہوا، اسرائیل بھی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اسرائیل پہلے تم آئے تھے اور پھر غائب ہو گئے، اب دوبارہ آئے ہو، تو اس آدمی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو اسرائیل فرمانے لگے، حضرت جی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند لمحات کے بعد اس کی جان ہندوستان میں نکالنی ہے، تو یہ یہاں شام، ملک شام میں یہاں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس، تو مجھے اس کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس کی موت میں چند لمحات رہ گئے تو یہ یہاں بیٹھا ہے، تو میں نے اس کو گھورا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے آج درخواست کی کہ ہوا کو حکم دو مجھ کو ہندوستان میں ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو ہندوستان میں ہوا نے اس کو پہنچایا۔ ابھی میں ہندوستان میں اس کی اس جگہ پہ جان نکال کے آیا۔ تو جس آدمی کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے کچھ لمحات بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وقت مقرر اللہ پاک کو پتہ ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے۔ جب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے، ہر وقت اپنی موت سامنے ہونی چاہیے اور آخرت کی تیاری آدمی کی ہونی چاہیے۔ جو بھی آدمی دن گزارتا ہے سمجھے میری زندگی کا آج آخری دن ہے، جو سال ہے میری زندگی کا آخری سال ہے۔ ہاں جی دیکھیں یہ نیا سال شروع ہو گیا 2022، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو گیا۔ اب اس نئے سال کے اندر پتہ نہیں کس کس کی موت لکھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس کس کا یہ زندگی کا آخری سال ہے، اور یہ پتہ نہیں جنوری کا مہینہ کس کس کا مہینہ آخری ہے۔ ہم ہر روز سپیکر پہ اعلان سنتے ہیں فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں آدمی فوت ہو گیا، تو یہ در حقیقت ہمارے لیے اعلان ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، تم بھی تیاری کر لو، تمہارا بھی ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ بار بار اعلانوں کا ہونا رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے منادی، ہمارے لیے توبہ کا اعلان، ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس کی جگہ پر اگر تم ہوتے تمہاری آخرت کے لیے کیا تیاری تھی؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگیاں عطا کی ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو کھیل اور تماشا فرمایا، اور فرمایا کہ آخرت کی زندگی اصل جینا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی فرمایا۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو یہ ایک مسافر خانہ قرار دیا۔ اس دنیا کے اندر انسان پر اچھے اور برے حالات آتے ہیں، مومن کو بنسبت کافر کے زیادہ تنگیاں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بہترین پیش خیمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔